Allahabad High Court has now dismissed the petition by a social activist seeking direction to restrain the respondents from the Bhumi Pujan for laying down foundation stone of the Ram Mandir at Ayodhya. The petition claimed that respondents invited about 300 people and that may cause social distancing violation. And if I in fact read out from this petition, it does say that this is only based on the assumption and there is no foundation for apprehending violation of the prescribed protocol. Let's go across to my colleague Nalini joining us with more on this. So Nalini, the Allahabad High Court has now dismissed the petition that has been filed to stop the Bhumi Pujan that has been dismissed. Well, absolutely, Richa. This was a petition that was filed by one of the activists by the name of Saket Gokhale, who had approached the Allahabad High Court through a letter PIL asking for this entire event that is scheduled for the 5th of August to put a stay on that because of possible violations of the social distancing norms during the times of Corona. What he essentially stated was that there was no particular need to hold any religious events at a time like this when the entire country was going through crisis, and that is why it is important for this to be stopped right now, and that's why he'd approached the Allahabad High Court. But now the Allahabad High Court, in the order that they have pronounced today, they've gone forth and stated that there is no basis to assume that social distancing norms or any other guidelines that have been put in place by the state government and the MHA will be violated while this entire event is happening, and this event needs to be done keeping in mind all of the guidelines that have been issued, and if the guidelines are being followed, then there is no reason why this entire event cannot go on. This is the first time, remember, Richa, that the Court of Law is not, this is not the first time that the Court of Law has come forth and allowed for a religious procession or a religious event of any kind to happen. Earlier we had seen a similar order come in from the Supreme Court regarding the Puri Jagannath Yatra, where the Supreme Court had allowed for the Yatra to happen but had essentially laid down some norms and guidelines on the basis of which it is supposed to be done. So this is not the first time that a religious event like this is being allowed to happen during the Corona crisis. Right. But at the same time, the Allahabad High Court, while pronouncing its order, has also laid down that there is no basis to All right, so Nalini, stay with us. Let's go across to Iqbal Ansari joining us over the phone line. So, sir, the Allahabad High Court has now dismissed this petition that has been filed by an activist. Your first response to it? Sir, if you can hear me, the Allahabad High Court has now dismissed this petition that was filed by an activist. They have said that it was only on the basis of assumption कि इस तरह की petition file की गई थी और this is certainly a massive setback. All right, we'll go back to my colleague Vivek now. Vivek, so this is certainly a big setback. The Allahabad High Court has now dismissed the petition and they have stated in clear words in this particular order that the entire petition of writ is based on assumptions and there is no foundation for apprehending violation of the prescribed protocol. And they are also expecting that the organizers of this event, both the government of UP, would ensure that all protocols will be followed relating to COVID. जी हाँ, देखिए कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे साकेत गोखले की तरफ से याचिका दायर करी गई थी और इसमें कहा गया था कि जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उस दौरान जो राम जन्मभूमि का जो गर्भगृह है उसका जो शिलान्यास होना है, भूमि पूजन होना है, वो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और ये आज जो एप्लीकेशन थी, जो PIL थी, इसको आज टेकअप होना था, लेकिन उसके दौरान ही इस बात का जिक्र जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस तरीके की जो याचिका है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जिन बेसिस पे है वो बेसिस बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं। और उन्होंने साफ तौर पे इस तरफ जिक्र किया है कि जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनका ये मानना, उत्तर प्रदेश की सरकार और अयोध्या का जो जिला प्रशासन है वो इस पूरे प्रकरण में इस बात की पुष्टि करेगा कि किसी भी तरीके के जो कोरोना के जो नियम हैं, जो कोविड के जो नियम हैं, उनकी किसी भी तरीके से जो उनका जो उल्लंघन
उल्लंघन है वो न हो और उन नियमों के अंतर्गत ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है। विवेक हमारे साथ बने रहिए। वील गो अक्रॉस टू इकबाल अंसारी नाउ, हु इज आल्सो पेटिशनर इन दिस केस। इकबाल जी, आपका पहला रिएक्शन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है ये प्ली जो एक स्टे लगाने की कोशिश की जा रही थी कोविड को आधार बनाकर, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, मंदिर का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है 9 नवंबर से। अब कोई आदमी बाधा पहुंचा ही नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले। क्या काम शुरू है, प्रधानमंत्री जी जो जहाँ आ रहे हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनको आना भी चाहिए। वे चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जब विवाद खत्म हो गया मंदिर मस्जिद का, तो उस पर लोग जो है अपनी अपनी प्रक्रिया जो लोग जाहिर करते हैं, कोई कोर्ट जाता है, कोई जो है सुबह रहा है, तो ये सब लोग तो करते ही रहेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब तो ये है कि बिल्कुल रास्ता साफ है। 9 नवंबर को हिंदू मुसलमान का पूरा विवाद पूरे देश से खत्म हो चुका है। मंदिर का निर्माण शुरू है। अब कोई रुकावट आ नहीं सकती, ना कोई मुस्लिम उसके अंदर भी जो है उसमें बाधा बन रहा है। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि लोगों को बातों का केवल नजरअंदाज किया जाए। इस पे लोग जो है राजनीति करके 70 साल उठाए फायदा। जी ऑलराइट, इकबाल जी, एक और सवाल आपसे। जैसे कि आप कह रहे थे कि एक तरह से कोर्ट ने एक सीधा रास्ता दे दिया है गवर्नमेंट को भी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि कोविड फिलहाल हम पूरे देश में फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा है कि उनको इस चीज में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। All right, we'll try to go back to Iqbal Ansari, but clearly a big update coming in from the Allahabad High Court, which has dismissed the petition by a social activist seeking direction to restrain the respondents from the Bhumi Pujan for laying down the foundation stone at the Ram Temple in Ayodhya. The petition claimed that respondents invite about 300 people and they may cause social distancing violations. But the Allahabad High Court has now dismissed this petition by the social activist and stated that this is only based on assumptions and they would not like to in fact interfere in this matter, and this has been stated in the order as well. इकबाल अंसारी, आपसे एक और सवाल कि जैसे कि कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दखल अंदाज नहीं करना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह से फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं कोरोना को लेकर। देखिए, कोरोना तो पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिससे बूढ़े लड़के बच्चे सारे के लोग में जो है इस वक्त परेशानी में। अब जो है ये काम सरकार, गाइडलाइंस जो है सरकार ने जारी किया है, उसका पालन सरकार ही करवा रही है। किस तरीके से उनको चलाना है, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। लोग जो है पूछते हैं, सवाल करते हैं, सरकार उसका जवाब दे रही है। अब बाकी तो मंदिर का काम तो स्टार्ट है। पूजा पाठ करने के लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को बिल्कुल तय कर दिया है। हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है। लोग अपने अपनी तरीके से अपनी बात लोग जो है रख रहे हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है, जो चाहे करे। जी, धन्यवाद इकबाल अंसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट वील गो बैक टू माय कॉलीग विवेक also who's also joining us live. So Vivek, this is certainly a very big step being taken by the Allahabad High Court that have dismissed the petition filed by the social activist. In fact, if we read out from this particular order, the court has said that this is only based on assumption and it is now on the onus of the state government to manage social distancing norms and keep in mind that COVID is still in the country.
जी, आप पूरी अगर याचिका को पढ़िए तो उस पूरी याचिका में जो अलग अलग चीज़ों को लेकर के जो जिक्र किया गया था, उसमें ईद का जिक्र था, बकरीद का जिक्र था, उसमें था कि किस तरीके से जो त्यौहार हो रहे हैं उसमें किस तरीके से लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है और उनके बिहाफ पर एक तरीके से आयोजन करने की बात कही जा रही है। और इसी को बैकअप बना के, इसी को एक तरीके से बेस बना करके जो याचिका थी वो दायर करी गई थी। और इस पे लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि ये जो पूरी की पूरी जो याचिका है ये कहीं ना कहीं बेसलेस है और जो भी आयोजक हैं यानी कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं वो और जो उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है वो इस बात की एहतियात रखे कि इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी रूप में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी जो धज्जियां हैं वो ना उड़ें और उस आधार पर वो ये कार्यक्रम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक है जो एक तरीके से जो PIL दायर करी गई थी और कहीं ना कहीं जो बड़ा आयोजन रोकने की जो कोशिश करी जा रही थी उसके लिए एक बड़ा सेटबैक है। और निश्चित तौर पर अब ये एक तरीके से कंफर्म हो चुका है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और जो रामलला के जो गर्भगृह का जो शिलान्यास होना है वो होगा। विवेक, अगर हम ये पूरे इवेंट की भी बात करें, वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर टू ऑल्सो अटेंड द स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ द भूमि पूजन ऑफ द टेम्पल एज वेल. What kind of preparations are currently underway to make sure, and as that has been stated in this order as well, to make sure that there are less of people that are being called and there is social distancing that is also maintained? देखिए, अभी जो चीज़ें अयोध्या से निकल के सामने आ पा रही हैं उसमें यह है कि जो गेस्ट लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट हालांकि तैयार तो हो रही है लेकिन अभी गेस्ट लिस्ट पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। सूत्रों के आधार पर अलग अलग जो नाम है उनकी चर्चा हो रही है लेकिन ये माना जा रहा है कि अलग अलग जगहों, एक जगह पर लोगों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर लोगों को एक तरीके से उनको देखने का जो इंतज़ाम है वो किया जाएगा। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जिससे कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पर जो कैमरे हैं वो सेटअप होंगे और लोग अलग अलग जगहों पर खड़े होकर के जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होंगी उसमें वो सारी चीज़ें देख सकेंगे। साथ ही साथ मीडिया को लेकर के भी अलग अलग जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो तैयारियां हैं वो करी गई हैं। मीडिया को उन जगहों पर जाने को लेकर के सिर्फ 1-2 जगहों पे ही जो एंट्रेंस है वो मिलेगी और सब कुछ एक तरीके से जो विजुअली चीज़ें हैं वो अवेल कराई जाएंगी। बाकी ज़्यादा भीड़ ना हो, कम से कम लोग वहाँ पर मौजूद रहें, इसको लेकर के खासा ख्याल रखा जा रहा है और इसी के आधार पर पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो रही हैं। इसको लेकर के PMO भी लगातार संपर्क में है, जो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस है वो लगातार संपर्क में है, जो ट्रस्टीज हैं वो लगातार जो उनका पूरा एक तरीके से जो पूरा इस आयोजन को लेकर के जो प्लान है वो कर रहे हैं। और इसमें जो अलग अलग साधु संतों को जो बुलाया गया है, अयोध्या के तो साधु संत रहेंगे ही रहेंगे, वाराणसी के, काशी के साधु संतों को बुलाया गया है। इसी तरीके से अलग अलग जो शुद्ध नदियां हैं वहाँ के जलों का जो एक तरीके से संकलन किया जा रहा है। जो महाकाल की जो भस्म आरती होती है वहाँ से बस मारती की जो राख है वो लाई जा रही है। इस तरीके के So clearly a very big update, Vivek, coming in from the Allahabad High Court that has now dismissed the petition by the social activists. It comes as a massive setback for the lobby as well. We'll leave it at that. Thank you so much, Vivek, for getting us that update.